मनीष, आई मस्ट से दिस टू यू कि ये जो शो है ये एक्चुअली मेरा फेवरेट शो है, वन ऑफ माई फेवरेट शोज ऑन द Amazon Prime Video लाइब्रेरी. बट मुझे बताओ, लेट्स गो बैक व्हेन यू एक्वायर्ड दिस शो, तब उस टाइम पर आपको पता था कि ये शो इतना बड़ा ऑडियंस फेवरेट होने वाला है? I think nahi. Answer is and I'll tell you why, because हमारे लिए I think stories are very important. हमें ये story बहुत पसंद आई और हमें लगा कि लोगों को बहुत पसंद आएगी. And then the writing and the directing team has done their job, and you've seen what the rest of the characters have done. So here we are. No, you'd really, I must say that Amazon Prime Video is anyway home of my favorite content. And very recently, Thank you. Honestly, I can't wait for the slate ahead. But for today, I'm really excited. Talk to me about how excited you are for the second season. What do you think the second season is going to do for you and for the audience? Any sneak peeks? Yeah, so I think a couple of things. The first one is, I think there's a certain thing about the narrative. It's really simple and it's nuanced and it comes with like this tinge of humor. It's just a tad bit there, but it's amazing. And the second thing is, it's the simplicity of the show. मतलब इतना simple है, इतना authentic है कि मतलब आपको प्यार हो जाता है, right? Like with the story, with the characters and so on. There's been a journey we've had with TVF as well, and I believe that it's their storytelling along with our vision of bringing fresh, unique, very rooted stories, and again, Amazon, we really believe the more rooted a story, the more global it is. So Panchayat is not just famous in India, but it's also like, really popular globally. So I like how you're actually divulging strategy, Yeah, So, well, why not? nice. Again, like, and it shows up in our shows, so, so again, we've had a fantastic partnership and, our vision matches and, this is another one that comes out of there. In addition to that, I think जब पहला season launch हुआ था, तो जो viewers के लिए ये milieu था, वो बहुत fresh था. जो story थी, वो बहुत fresh थी, और जो characters थे, वो बहुत fresh थे. Right? So everybody fell in love with not just the characters, but they got deeply involved in them. कि मतलब ये हो क्या रहा है इनकी life में. मतलब आज कद्दू कब आने वाला है कद्दू? अरे हमारे यहाँ पे तो लौकी बोलते हैं सर. Well, I think see, this is the difference, right? And we'll let the characters speak more about that. But again, it's some of those nuances about the show, the milieu, and the characters that made consumers like very deeply rooted into the show itself. And I think when it comes to season 2, I'm maybe a little bit more excited than I was when I was with season 1. It is as authentic, it is as rooted, the characters are as likable and lovable, and there's a lot to look forward to, and again, like I said, I'm super excited. Well, thank you so much. A big hand for Manish for backing stories that will cut across boundaries. Please, तालियां होनी चाहिए सर. आपके हाथ कैसे हैं आप? एक सेकंड ना, बहुत अमेजिंग आदमी है यार, ताली मारो ना यार, है ना, आग लगा देंगे. दीपक जी, आई मस्ट से दिस, जब सीजन 1 बन रहा था तो टेक अस बैक इन टाइम ना, उस टाइम पर क्या एक्सपेक्टेशंस थे? मतलब ये बना तो दिया, लेकिन इतना होगा बवाल एक्सपेक्ट किया था क्या? हाँ, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत बवाल होगा ये पता था. मैं झूठ बोल रहा हूँ. हमें कुछ भी नहीं पता था, और एक ऐसा शो था जो बहुत ही यूनिक था, बहुत डिफरेंट था, और हम नर्वस भी थे कि क्या होगा, कैसा होगा. बट जैसा हमारी टीवीएफ में परंपरा रही है, अपने प्रोड्यूसर अरुणाब कुमार सर के गाइडेंस में हमने मेहनत करते रहे, स्क्रिप्ट पे काम करते रहे, जो की फोकस होता है हमारा, और फिर रिस्पॉन्स आया और ऑडियंस का बहुत सारा प्यार मिला, ढेर सारा प्यार मिला, जितना इमेजिन नहीं किया था हमने. तो बहुत अच्छा लगा. और आई थिंक इसमें हमारे पार्टनर्स प्राइम वीडियो, जो कि नोन है अपने डिफरेंट यूनिक कंटेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए, और जिस तरह का नेटवर्क है इनका, इन्होंने हमें हेल्प किया पंचायत को गांव के छोटे छोटे झोपड़ों तक पहुंचाने में. इसके लिए थैंक यू सो मच. और आज हम सीज़न 2 के साथ खड़े हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से हमें वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा. थैंक यू. ये कहूंगी कि विद ग्रेट लव एंड ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इससे पहले कि हम ट्रेलर तक पहुंचे, अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताइएगा कि सीज़न 2 में क्या ये एक्सपेक्टेशंस
आपके लिए एज अ डायरेक्टर, राइटर साहब के लिए, कास्ट के लिए बढ़ गए थे? प्रेशर था? एक्सपेक्टेशन तो नहीं कहूँगा, प्रेशर ज़रूर बढ़ गया था, बिकॉज वी हैड बिग शूज़ टू फिल। और कहीं भी आजकल हम जाते हैं, हर जगह पंचायत की एकदम रिमोटेस्ट विलेजेस में बात होती है, और सिर्फ यंग नहीं, मतलब सीनियर क्राउड भी, बच्चे अपने दादाजी को दिखा रहे हैं, अपने पिताजी को दिखा रहे हैं। तो अक्रॉस जनरेशन जो एक हाइप है, उसका बहुत प्रेशर था, और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये भी पसंद आएगा। ठीक है, आपकी कोशिश और आपकी उम्मीदें जो हैं अब हम तक पहुंचने वाली हैं, बिकॉज दिस इज द क्राउड, द ऑडियंस, द चोजन वंस, जो शायद पहली बार आज सीजन 2 का ये ट्रेलर देखने वाले हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो तालियों के साथ प्लीज लेट्स वॉच सीजन 2 पंचायत द ट्रेलर। शुक्रिया। मनीष एंड दीपक, यू कैन ऑल्सो प्लीज टेक द स्टेज। जीतू भैया, आपका इंतजार है स्टेज पर। अभिषेक जी आ जाइए हमारे साथ इस स्टेज पर। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, हाय हाय हाय। सुनीता जी जो क्रांति देवी का रूप ले रही है इस बार, भूषण जी के साथ क्या कांड होने वाले हैं पूछते हैं इनसे। सुनीता जी, आपका स्वागत है स्टेज पर। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू कम अप ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ फैजल भैया हैं आप पीछे हमारे, आएंगे स्टेज पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ साथ चंदन जी, आपका इंतजार है। चंदन जी कहां पर हैं? सबसे सुडोल चेहरा लेकर जो इंसान है स्टेज पर, मेरे हिसाब से खूबसूरत आदमी। एंड ऑफ कोर्स, व्हाट इज अ शो और अ प्रोजेक्ट विदाउट इट्स राइटर, राइट? तो प्लीज चंदन कुमार जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। चंदन जी। Ladies and gentlemen, we give you team Panchayat. This is the photo opportunity. जितने फोटो चाहिए करवा लीजिए सर। आगे आइए, थोड़ा सा आपसे दरख्वास्त मंगाया है, थोड़ा सा आगे जाइए सर। अभी ठीक है आपके लिए? ऑल गुड, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दरख्वास्त करूंगी कि जो हमारी कास्ट है हमारे साथ स्टेज पे रहें, और क्रिएटर्स, थैंक यू सो मच वंस अगेन। डायरेक्टर साहब, राइटर साहब, मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच। चेयर्स आएंगी, हम बैठेंगे, कुछ बातचीत होगी। आप लोगों को ट्रेलर सही है। आप ही बात करो यार इनके साथ, मैं क्यों, मैं तो शो में भी नहीं हूँ, आप बात करो ना इनसे। नहीं, एपिसोड्स में और मजा आएगा, ट्रेलर से ज्यादा मजा आएगा। ये जो, चलिए शुरू करते हैं। मुझे बताइए कि जो आपका लास्ट एपिसोड था, क्लिफ हैंगर था कि क्या हो रहा है अभिषेक और रिंकी के बीच में, तो बताइए तो हमको भी। वो तो पता चलेगा 20 तारीख को, लेकिन हाँ काफी सारी चीजें हो रही हैं, मतलब धीरे धीरे आराम से। अच्छा, तो ये सस्पेंस आप नहीं तोड़ने वाले? हाँ, ये तो मुझे लगता है कि देखने दो, एपिसोड देखेंगे तो पता चलेगा। बट हाँ, काफी इंटरेस्टिंग ट्रैक है वो भी, और जो इस सीजन में हम लोगों ने थोड़ा और ट्रैक वो खोलने की कोशिश की है, तो मजा आएगा अभिषेक और रिंकी का रोमांस देखने में। बहुत बढ़िया। जीतू, टॉक टू मी अबाउट द फैक्ट दैट ये शो जो है इतना पॉपुलर, इतना वाइल्डली सक्सेसफुल, लेकिन ऑडियंस की वजह से क्या रिएक्शंस हैं और कितना इंतजार रहा है सीजन 2 के लिए, आप बताएं मुझे। आई थिंक हाँ, मतलब जब बना रहे थे तो वही कंफ्यूजन था कि कितना स्प्रेड होगा, कितने लोग देखेंगे, क्या रहेगा। मतलब आई थिंक हम लोग ये तो श्योर थे कि कंटेंट अच्छा बना रहे हैं बट कितने लोग देखेंगे ये नहीं आइडिया था। एंड आई थिंक हाँ, प्राइम वीडियो ने काफ़ी उसको अच्छे से मार्केट किया और सब लोगों तक पहुंचा वो, तो उसके लिए थैंक यू प्राइम वीडियो। एंड जो रिस्पांस था वो काफ़ी इतना खतरनाक था कि हम किसी से भी वेट नहीं हो रहा था कि कब सीज़न 2 हम स्टार्ट करेंगे और कब वो आएगा। एंड फाइनली वो डेट आ गई है 28 मई, और वो आने वाला है। होपफुली सबको अच्छा लगे। जी, तो मुझे बताओ कि अभिषेक जी क्या कभी फुलेरा छोड़ेंगे अब? हाँ, ये सवाल गंभीर है लेकिन ठीक ठाक सवाल है, अच्छा सा सवाल। हाँ, मुझे लगता है अभिषेक का तो मन नहीं कर रहा है, बट ठीक है ओहो, ओहो, ऑलराइट। गांव सुंदर इतना है, गांव के लोग सुंदर हैं, तो आई थिंक अभिषेक तो वहीं रहना चाहता है। बाकी तो हाँ, डेस्टिनी है अभिषेक की। That's a fantastic trailer. Thank you so much, Jeetu. Thank you so much for joining us.
रघुवीर जी जी लौकी लाए हैं? ये मुझे लौकी जैसे लग रहा है। इतने सारे किरदार, मैं आपसे कहूँ ये मेरा पर्सनल फैन मोमेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बैक स्टेज भी कहा कि हम तो आपको तब से देख रहे हैं जब से हमको पता ही नहीं था कि हम क्या देख रहे हैं। 88 की बात है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उस टाइम से आपको देखते आ रहे हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि एज एन एक्टर अपने आप को इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। प्रधान जी के किरदार ने आपको क्या दिया? प्रधान जी के किरदार ने बहुत कुछ दिया है मुझे एक्चुअली। आवाज़ आ रही है? नहीं, उनको पीछे रिकॉर्डिंग। अरे उनको भी आ रही। तो क्या है ये माइक वाइक की आदत नहीं है। लौकी समझ के पकड़। हाँ चीज लोग समझ पकड़। आने दीजिए, अभी तीसरा वाला जब आएगा ना आपको लौकी खिलाया। हम छोड़ेंगे नहीं क्रांति देवी। आप समझती कहाँ हैं अपने आप को? अभी आपके हाथ में लौकी नहीं है, कुछ और आया है। बताएंगे हम आपको, बहुत हो गया। एक बार और आपने कहा था। हाँ ठीक है, अच्छा। तो प्रधान के किरदार से मैंने बहुत सीखा। एक्चुअली सीखने की मेरी आदत ही है, हमेशा से ज़िंदगी भर सीखते ही चला आ रहा हूँ, और सीखने भी बड़ा मज़ा आता है। कोई भी कुछ कह देता सुन लेता हूँ, उससे सीख लेता हूँ, और सीख ऐसे लेता हूँ कि पता नहीं ये जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर गलत कर रहा हूँ तो सही रास्ता इख्तियार कर लेता हूँ, और सही कर रहा हूँ तो गलत रास्ता नहीं इख्तियार करता फिर। तो ये है कि बहुत कुछ सीखा। और क्या है कि मैं पंचायत का जो माहौल है, जो उस गांव का माहौल है, इस माहौल से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही गांव का। बैलगाड़ी चलाता था। एक बहुत छोटे से एक विलेज से मेरा ताल्लुक़ है, और वहाँ पे मेरे नाना जी ज़मींदार थे, और उन्होंने एक स्कूल बनवा दिया था, और बिल्कुल यही फुलेरा जैसी हालत थी। और वहाँ पे एक ही स्कूल बना, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन। तो ये लक्ष्मी नारायण मेरे सगे मामा जी हैं, उनको एक पागल कुत्ते ने काट दिया था, तो उससे उनकी डेथ हो गई। उन्हीं की स्मृति में वो स्कूल बनवाया, और उसी में मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो वो अभी भी है, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन। तो हम बहुत सारे बच्चे वहाँ से पढ़ के निकले, और वो स्कूल ऐसा है कि फेल होना ज़्यादा सिखाता है, पढ़ना कम सिखाता है। तो ऐसे ही मैं सीखते चला आया हूँ। फिर ये प्रधान जी मुझे मिल गए, तो हमारे गांव में भी बहुत प्रधान सब हुआ करते थे। और मैं एक्चुअली मध्य प्रदेश का हूँ, फिर मैं बिहार में भी रहा हूँ, मैं राजस्थान में भी रहा हूँ, मैं यूपी में भी रहा हूँ। तो इस तरह का जो माहौल है मुझे बड़ा मज़ेदार लगा, ये पूरे पंचायत का। मज़ेदार ऐसा लगता कहीं ना मेरे अंदर ही है, वो मेरी ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है। तो फिर जब सामने आया तो बहुत मज़े किए मैंने। और साथ में ये जो बड़े बड़े गुंडे, ये जिन्होंने एक्टिंग में गुंडागर्दी अख्तियार कर रखी है, इनका साथ मिल गया। ये देखो गुंडी है, ये सब। तो इनके साथ फिर और मज़ा आ गया। फिर इन लोगों से भी बहुत सीखा मैंने। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मैंने लंबी बात कर दी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बोलते रहिए। प्रधान जी आपका तो बनता है, आपका तो बनता है। हाँ, मैं अपनी बात समझाना चाहता हूँ आराम से। क्या है, कम से वो लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन है ना, कम में नहीं समझते तो फैला के समझाता हूँ। नहीं, फैला के कुछ ही रह न फुलेरा जाए। की बातें होनी चाहिए। कुछ रह न जाए। रहना जाए, बिल्कुल। अच्छा जी, चलिए। सुनीता जी। हाँ, मैं देख रही हूँ कि मतलब क्रांति देवी के रूप में आकर दीदी छा रही हो। मुझे बताइए कि ये जो इस सीजन में आप कितना बवाल मचा रही है, क्योंकि काफी लग रहा है कि आपके ऊपर पूरी नडिंग चल रही है पूरे सीजन की। नहीं नहीं, वो कसर तो प्रधान जी भी कुछ नहीं छोड़ते हैं, पर ये है कि हाँ, मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि सारे मसाले हैं, तो मिर्च का जो आखिरी तड़का है, ओहो ओहो, तो ये वो मिर्च का तड़का है। क्या बस। बात है, क्या बात है। ये कोई आप पे कुछ फेंक रहा था ट्रेलर में, चप्पल थी शायद। ये किसने फेंकी ये चप्पल, जरा बताइए ये मुझे। है ना, ये जीतू जी, अभिषेक जी आपने ये किया? सचिव जी ने फेंकी है। सचिव जी ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? तो ये इंटेंशनल लोग नहीं था। मिलकर ही करते हैं ना। इंटेंशनल कुछ नहीं था, गलती से हुआ था। ये लोग सब करते हैं, फिर कहते हैं हमने तो इंटेंशन नहीं था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चप्पल को गिरते हुए नहीं देखा, उसमें फूल भी लगे हुए थे। मैं जानती हूँ कि इस शो में कहीं ना कहीं ये एक वॉर जैसा लग रहा है ना,
कि आप इनका एक परिवार जैसा है और आप जो हैं अलग हैं। अलग हैं, लेकिन आई एम श्योर कि शूटिंग के दौरान ऐसा नहीं हुआ होगा। ना 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 बिल्कुल। तो ज़रा बताइए कि यहाँ पर कौन कितने पानी में है, सबसे ज़्यादा कौन सताता है, कौन ज़्यादा खाता है, कौन ज़्यादा बातें करता है, ज़रा बताइए कौन कितने पानी में है? नहीं नहीं, ये तो मतलब हम लोग ऑन स्क्रीन इस तरह का किरदार है, पर अदरवाइज हर कोई बहुत अच्छा है, बहुत आपकी बहुत फेवरेट अच्छा है। एक को चुनना है, चलो चुन लो। ये उधर मुंह करके क्यों बोल लिया? आप इधर मुंह नहीं करके बोल ये सब बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली सच बताऊं तो मैं भी फैन थी, बिकॉज मैं पंचायत 1 का हिस्सा नहीं थी। जी हाँ। और जिस तरह आप सब लोग पंचायत देखने के बाद उसके फ़ैन हो गए थे, उसी तरह मैं भी उसकी फ़ैन हो गई थी। और आर्टिस्ट की एक भूख होती है, जो भी कुछ अच्छा काम होता है ना, उसको लगता है काश इसमें मैंने भी कुछ किया होता। जी हाँ। तो मेरी तो वो मुराद पूरी हो गई। क्या बात है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम वीडियो की, टीवीएफ की, और इन सारे कलाकारों की, मेरे डायरेक्टर की, राइटर की, कि मुझको मौका मिला। जी हाँ। और ऑफ स्क्रीन तो सबके साथ बहुत अच्छा फेवरेट relation है। एक को चुनना है। एक को ये पंचायत 3 के लिए बीज डाल रही है लड़ाई के। मैं मजाक कर रही थी सुनीता जी, मैं मजाक नहीं, कर रही थी। मैं- नहीं शीज लाइक मैं चुनूंगी, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। नहीं, मेरी फेवरेट अभी है नहीं, मेरी फेवरेट है नीना गुप्ता। तो उनके साथ मेरा सबसे अच्छा समय गुजरता हाय, है। हाय। तो हम इन सब की भी बुराइयां कर लेते हैं। अच्छा, ये तो लेडीज वाली पार्टी हो गई ना। लेडीज वाली बहुत पार्टी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसलिए जैसे कि हम कर रहे हैं इसमें। ये चलिए। सब बहुत अच्छे हैं, पर वो बहुत ही अच्छी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैजल भाई, आपसे बात करनी है मुझे, जरा माइक। शुक्रिया। प्रहलाद जी जब आते हैं स्क्रीन पर, उनको देख के मुस्कुराहट छूटने लगती है। मुझे बताइए आप में और प्रहलाद जी में क्या कॉमन है, आपके किरदार में और आप में? जी मैंने बहुत मेहनत किया उसके लिए, खूब खाया, अभी तक खा रहा हूँ। अच्छा, तो ये आर यू continuity मेथड में है। एक्टर? तो ये सब जो वेट चल रहा है ये पंचायत की वजह से चल रहा नहीं है? नहीं, मैं वैसे भी था, पर अच्छा। मुझे अब अपने आप को झूठ बोलने के लिए पंचायत का नाम दिखा देता हूँ। इसकी वजह से इसकी वजह वेट से। पुट ऑन कर रहा हूँ, तो और बहुत मेहनत हाँ, किया मैंने और इसके इस लिए। सीजन में तो आप अलग नहीं लग सकते थे, तो जी मेंटेन फिर खाया मैंने 1-1.5 साल, फिर जो है इसको सोचते सोचते कि अगले क्या बात सीजन है। में क्या अगला फिर आएगा, फिर खाता रहूंगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत, जैसे एक्टर लोग कहते हैं, मैंने वेट गेन वेट लॉस, मैं Exactly. वेट गेन पे जो है मेरा वो कुछ वीडियो भी बन के आएगा कुछ दिन बाद, 220 पार होने का पंचायत 10 पे। पंचायत 10 में हाँ देखेंगे कि एक्चुअली उसका ये आर्क यही होना चाहिए कि प्रहलाद जी के साथ क्या जी, होता है। टंकी के पास मेरी टंकी होगी तो ऐसे तो ऐसा रहेगा। फैजल, मैं आपको बताती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसा शो जहाँ पर हर किरदार को मिल रहा है इतना प्यार। जी। आप मुझसे उस प्यार की बात कीजिए कि आपके लिए क्या किया है इस शो ने। इस शो ने एक्चुअली, मैं तो एक्टिंग करता नहीं था, तो इस शो में मतलब जो किया उसके बाद एक दिन 3 अप्रैल को दुनिया ही बदल गई। हाँ जी। तो तब से अभी तक बदली हुई है, तो उसको रोज़ देखता हूँ, अच्छा ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो वो इस शो की वजह से हुआ है। थैंक यू चंदन और दीपक का, बिल्कुल। बाकी सारे लोगों का। तो मेरे तो ये पिछले 1-2 साल से शुरू हुआ है ये एक्टिंग और ये सब सारी चीज़ें। जी हाँ। तो मैं रोज़ ही देखता हूँ कि अच्छा ये भी हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, पंचायत की वजह से हो रहा है। और पंचायत धीरे धीरे और भी अच्छा होता जा रहा है। तो एक जर्नी है मज़ेदार सी अभी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, और सीजन 2 में प्रहलाद जी क्या करेंगे, कुछ बता सकते बस हैं? वही मैंने बताया, हाँ बॉडी बना रहा हूँ। बॉडी बना रहे हैं। क्या माशाल्लाह, थैंक यू फॉर दैट। मैं चाहूंगी कि आप माइक चंदन जी को दें। बॉडी बना रहे कि पेट बना रहे हो? चंदन जी मुझे बताइए कि ये जो कहानी है, सीजन 1 के बहुत फैंस हैं, उनको कहानी शायद पता है, लेकिन जो मैंने दीपक सर से पूछा थोड़ी देर पहले कि सीजन 2 में जाने से पहले एक एक्सपेक्टेशंस होती है और एक प्रेशर होता है। एज अ राइटर क्या ये प्रेशर लेना ठीक होता है, अच्छा होता है? थोड़ा सा प्रेशर तो लेना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, हाँ, बिना उसके तो नहीं होता है। बट हाँ, उतना डरने की कोई बात नहीं थी, इतना तो पता था। क्योंकि अगर हमने 1 जब बनाया था उस समय भी कुछ चीज़ें आगे क्लियर थी हमें कि हमें किधर जाना है। इतना कोई ब्लाइंड टर्न नहीं था कि सडनली कि अब वी डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो थोड़ी बहुत प्लानिंग पहले से थी, और जब एक बार आगे फिर गो हेड मिला उसके बाद फिर हमने काम शुरू कर दिया एंड वी लाइक फिनिश्ड इट इन अ गो। एंड प्रेशर थोड़ा सा तो रहता ही है, सो इट्स ऑल राइट आई गेस। मनीष ने एक बहुत अच्छी बात कही थोड़ी देर पहले स्टेज पर। उन्होंने एक्चुअली कहा कि जितनी रूटेड कहानी हो उतनी ही वो ग्लोबल हो सकती है। और मैंने कहा वाओ क्या स्ट्रेटजी आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, लोग दूसरे लोग भी बना सकते हैं ऐसा शो। ओ माय गॉड, ऐसे मत बोलो सीक्रेट्स। लेकिन आप मुझे बताओ, व्हेन यू आर राइटिंग, आप भी यही मानते हैं कि जितना रूटेड एक एक कहानी हो उतनी ही उसकी रीच कॉमन होती है, या फिर क्या ये हर बात पर अप्लाई नहीं करता? नहीं, जैसे रूटेड का भी एक डेफिनेशन है कि आप रूटेड किस चीज़ को कहते हैं। लाइक जी हाँ। राइट, रूटेड एक होता है कि आप
कई लोग एज्यूम कर लेते हैं रूटेड लाइक कि केवल गांव देहात की कहानी है, राइट? कि हाँ तो कहीं तो ये रूट से जुड़ा हुआ है, या कुछ सिर्फ वैसा है, या बट सिर्फ एक बट लोकेशन हो, हाँ करेक्ट। बट एक्चुअली रूटेड इज लाइक यू आर प्लेइंग विद बेसिक ह्यूमन इमोशंस एंड जी हाँ। थिंग्स, राइट? जी। अब उसमें बड़ी छोटी चीजें हो रही हैं, स्केल हो सकता है डिफर है, तो बड़ी स्केल की मूवीज भी रूटेड होती हैं, बिल्कुल। बड़े स्केल के शोज भी रूटेड होते हैं। सो रूटेड का अगर डिफिनेशन ऐसा है कि हाँ बेसिक आप चीज़ों पे प्ले अप कर रहे हो, सो दैट्स लाइक ऑफ कोर्स इट विल बी यूनिवर्सल। That's fantastic. yeah. दीपक, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हर कहानी की शुरुआत स्क्रिप्ट से ही होती है, एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट TVF फॉर अ वंडरफुल 10 years as well. TVF के लिए तालियां होनी चाहिए. 10 years of great content, guys. Let's not forget that. थैंक यू। So let's go back to that script. जब स्क्रिप्ट आती है आपके पास, what do you think is the responsibility of a director? जब एक सीजन बहुत अच्छा कर लेता है, दूसरे सीजन में जाने से पहले कौन सी चीज़ें होती हैं जो आसान हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये किरदार, ये लोग, इनके रिएक्शंस कैसे हैं, तो एक न्यूनेस कैसे लाते हैं अपने साथ? देखिए, न्यूनेस तो सब कुछ कहानी से ही आता है, जी हाँ। ठीक है? अगर सेम कैरेक्टर है आपके पास और एक सेम शो है जो आप फिर से बनाने जा रहे हो, तो आप उन कैरेक्टर्स को किस तरह की परिस्थिति में डाल रहे हो, अगर वो बदल दो तो नया अपने आप आ जाता है। तो काफ़ी डिफरेंस है, परिस्थितियाँ बदली हैं सीज़न 1 से 2 में, चाहे वो अभिषेक त्रिपाठी हों, चाहे बाकी कैरेक्टर्स हों, सबकी परिस्थितियाँ धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, और वो जो इवॉल्व होना है वही नया है, और उसको जैसा लिखा गया उसको एग्जैक्टली उस तरह से कैप्चर कर लेना और ऑडियंस तक पहुंचाना, वो चैलेंज होता है। मैं देख रही हूँ कि इस सीजन में बहुत सारे कॉल बैक्स हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं एज अ फैन, जैसे कि बवासीर को हम नहीं जाने देंगे, एंड आई थिंक जिनको पता नहीं था उनको भी पता है, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस, राइट? कि एंड आई वाज टेलिंग माय ऑडियंस थोड़ी देर पहले कि आई एम अ बॉम्बे गर्ल, यहाँ पर पैदाइश हूँ, तमिल हूँ लेकिन बोलती नहीं हूँ, एंड ये मेरी डिसएडवांटेज है ऑनेस्टली। लेकिन जब ऐसी कहानियाँ आती हैं जहाँ पर यू जस्ट गेट इनटू दैट वर्ल्ड, एंड आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या ये भाषा जानते हैं, क्या आप ये रेफरेंसेस जानते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ द विन ऑफ पंचायत. सो आई वांट टू से दैट दिस इज़ माय पर्सनल, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम. थैंक यू सो मच. थैंक यू ये सीजन 2 लाने के लिए हमारे लिए. 20 तारीख को आप देख सकते हैं. अब एक काम करते हैं, अपने माइक्स ना तैयार रखिएगा, एंड जिनके पास ना हो तो प्लीज़ पास ऑन कीजिएगा. अपनी जो ऑडियंस है, यहाँ पर भी फैंस हैं. I'd like to open the floor for questions from the audience. You know what to do? You'll raise your hand, the mic will come to you hopefully, and you can answer. सिराज जी, नमस्कार जी. ज्योति जी को माइक की जरूरत नहीं. ज्योति जी किससे पूछना चाहेंगे आप? रघुवीर जी, अच्छा पूछिए. बुलंद आवाज है, बोलिए. बहुत ही कम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हेलो हाँ एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा काम करना नहीं चाहता. नहीं, पंचायत भूल जाऊँगा मैं. तो मैं आराम से इत्मीनान से, शुरू से मेरी आदत यही रही, जितना बर्दाश्त हो जाए उतनी करो. ऐसा नहीं कि एक पैर इधर रखा हो, 2 कश्तियों में सवार हो जाऊँ तो फिर ना इस कश्ती में बचूंगा ना उसमें, मैं तो बीच में रह जाऊँगा. तो मुझे इत्मीनान से काम करने में बड़ा मज़ा आता है और वैसे ही काम करना चाहता हूँ मैं. और ये मेरी नीयत ही पहले से ऐसी रही कि वही काम करो जो लोगों को अच्छा लगे, जो खुद को अच्छा लगे. अगर खुद को अच्छा नहीं लगेगा तो लोगों को क्या अच्छा लगेगा. तो बस इसी नीयत से मैं काम करता हूँ और कम काम में मुझे बड़ा मज़ा आता है. मैं बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं चाहता. ऐसा लगता है कि बस जिसमें सुकून मिले बस वैसे ही करते चलो, उसी रफ्तार से चलो बस. जी, क्या अंतर है? उसमें मुंगेरी लाल था, इसमें प्रधान है. हेलो. काफ़ी एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का. बस वही है कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता चला जाता है. थोड़ा मंझते चला जा रहा हूँ और पता नहीं कितना मजा हूँ. सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं है, ना पहले मुंगेरी लाल में था ना अभी है. ऐसा लगता है कुछ ना कुछ रह गया है, तो अभी और ज़्यादा लगने लगा. तो ये फ़र्क आ गया. मुंगेरी लाल में शायद था कि हाँ ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और पंचायत तक पहुँचा, तो पंचायत करने के बाद जाहिर है लोगों को बेहतर लगा. लेकिन मुझे हमेशा ही लगता है ये छटपटाहट, आप इनसे पूछ लीजिए, छटपटाहट मेरी सेट पे भी रहती है. ऐसा लगता है कुछ और कर दें, कुछ और कर दें, ये बेहतर हो सकता है, ये बेहतर हो सकता है. तो ये छटपटाहट बढ़ते चली जा रही है. अब पता नहीं इसका आगे क्या होगा. शुक्रिया ज्योति जी. सिराज जी, आप पूछना चाहेंगे सवाल? Is there a mic coming to you? I'm wondering, huh? Is there one?
Sir, it's right behind you. Yes, thank you. मेरा सवाल भी रघुवीर जी से है। सिराज नाम है मेरा, मैं filmfestivals.com जी। की तरफ से हूँ। सिराज सैयद नाम है मेरा। जी, रघुवीर जी, जी 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 मैं जानता हूँ कि आप गाते बहुत अच्छा हैं, कविता बहुत अच्छी सुनाते हैं, लिखते भी हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्या आपको इस वेब सीरीज़ में ये सब करने का मौका मिल रहा है या मिलने की संभावना है? और नहीं तो फिर इसके अलावा कहीं और आप अपने इन फ़नों का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? मौका मिलता है तो कर देता हूँ। और क्या है कि म्यूज़िक तो एक्चुअली मैं म्यूज़िक के वजह से ही एक्टर बना हुआ हूँ। मैं सीखना म्यूज़िक ही चाहता था और ये समझिए कि एक्टिंग गले पड़ गई तो बस म्यूज़िक का सहारा लेके मैं एक्टिंग करते चला जाता हूँ। तो ये जो एक्टिंग ही कर रहा हूँ, आप पूछिए सेट पे। रोज सुबह सर फ्लूट बजाते थे, पहुंचते ही सेट पे फ्लूट चालू हो जाता था उनका। फ्लूट और बांसुरी अलग अलग तरह की ये बना के भी रखते हैं और बनाते भी हैं घर पे भी। तो वो सारी चीजें स्टार्ट ही वैसे होता था सेट पे, अपनी वैन में बैठ के। जी, एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो पहला जो मेरे अंदर ये म्यूज़िक का या ज़िंदगी जीने का सलीका या ये सब कहाँ से आया। मैं एक छोटे से गांव से मेरा ताल्लुक़ है और हम आधार ताल, वो जगह जबलपुर में है एक आधार ताल, वहीं पे तालाब के किनारे एक टीला है। टीला पे एक मकान था और मैं 2.5-3 साल का रहा हूँगा। और दूर से एक पापड़ वाला निकलता था, पापड़ बेचते हुए, और वो सिर्फ एक घर के लिए पापड़ के लिए आवाज़ लगाता था, पापड़ बेचने की। तो सिर्फ हमारे घर था तो दूर से आवाज़ लगाता था, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। वाह वाह। तो बस ये था वो पापड़ वाला, मेरा उस्ताद बन गया। फिर मैं दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था और तरह तरह से बेचता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। तो ये सारी चीज़ें बचपन से लग गई। तो बस ऐसा लगता है कि बस इतना इस पूरी कायनात में इतना कुछ सीखने के लिए पड़ा है कि एक ज़िंदगी बड़ी छोटी सी लगती है। तो बस उसी रॉ में आके बस जो मिलता है सीखते रहता हूँ। और ये कभी उम्मीद नहीं करता कि ये मुझे काम करना पड़ेगा या मुझे गाना पड़ेगा या मुझे गाना चाहिए या नहीं। अपना भैया सीख रहा हूँ, जिसको मर्जी हो, अगर ज़रूरत पड़े तो गवा दो या जो भी करवाना है करवा लो, नहीं ज़रूरत है रहने दो, मुझे अपने ही खुश रहने दो। बस यही सिराज जी, अपने मजे के शुक्रिया। लिए करते रहे। क्या जीतू सवाल जी। था? शुक्रिया। जीतू जी नमस्ते, मैं रेखा खान नवभारत टाइम्स से। पहले तो मैं पूरी आपकी समस्त टीम को बधाई देना चाहूँगी और बहुत सारी मुबारकबाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं पीछे हूँ, 1 मिनट में खड़ी हो जाती हूँ, आप मुझे ढूंढ रहे हैं। जी नमस्ते। नमस्ते रेखा जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू सो तो मच। पहला सीज़न तो बहुत ही धमाकेदार रहा और गजब बेइज्जती है, ऐसा कुछ जो डायलॉग्स हैं, इस तरह के बहुत सारे मीम्स बन गए। तो अब जो है कि लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो भी काफ़ी बढ़ी हुई हैं। तो कैसा लगता है कि दूसरे सीज़न में मतलब क्या धमाका होगा? ट्रेलर में तो पता चल रहा है, लेकिन क्या वो सारी अपेक्षाओं पे खरा उतर पाएगा? क्योंकि किसी भी शो का मीम्स बन जाना आज के दौर में उसकी सफलता की निशानी माना जाता है। हाँ जी बिल्कुल, आई थिंक हाँ, मतलब जब अपेक्षाएं होती है तो मज़ा भी बहुत आता है और हम भी उतना इंटरेस्ट लेके और उतना एंथू से हम लोग उतने एंथुजियाज्म से काम भी करते हैं। तो आई थिंक बहुत धमाल होने वाला है। वो 20 को सब लोगों को पता चल जाएगा। आई थिंक जो पिछला सीज़न था, मतलब उसी जोन में खेलते हुए हमने बहुत सारी अलग वही सिचुएशंस विद सभी कैरेक्टर्स के साथ ट्राई किए और भी नए कैरेक्टर्स आएंगे, वो देखने को मिलेंगे। और मतलब इस बार गांव और पंचायत में हम ज़्यादा घुस गए हैं इस बार। मतलब पिछली बार तो फिर भी मोस्टली सिचुएशंस पे थे, इस बार और पंचायत का काम क्या होता है और मतलब गांव में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उन पे भी हमने बहुत ह्यूमरस ड्रामा दिखाने की कोशिश की है। आई होप कि सब लोगों को अच्छा लगेगा और ये जो छोटा सा हमने ड्रामा भी ट्राई किया है इस बार, उसमें भी मज़ा आएगा। और इस बार एक अभी जो एक हल्की सी झलक हमें ट्रेलर में देखने को मिली है, वो है आपका एक लव ट्रैक भी लग रहा है। बोली तो वो एक चीज़ भी, मतलब वो एक कहते हैं ना कि एक खुशबू, एक इश्क,
वो एक नज़र आ रहा है, तो मतलब क्या मतलब बिल्कुल आपने सब कुछ बयां ही कर दिया है कि सब खुशबू वो नहीं सारी नहीं, चीजें। ये तो मेरे लफ्ज हैं, मैं आपके जानना चाहूंगी। जावेद साहब कैसे हैं आप? मजा आ गया। जी। बोले बोले सर। आई थिंक हाँ, मतलब वो अच्छा क्लिफ हैंगर था लास्ट सीजन में, और सब लोगों ने उस पे काफी कमेंट्स किए कि ये वाला भी ट्रैक हमें देखना है, और वो बहुत खूबसूरती के साथ चंदन ने लिखा है और मिश्रा जी ने चित्रित किया है। चित्रित, इसके बारे में बताइए। चित्रित, इसके पीछे का मतलब क्या है, कहानी बताइए सर। Where did this come from? मजा आ गया। तो आई थिंक हाँ, बहुत सारी खुशबुएं देखने को मिलेंगी उस ट्रैक में भी आपको। शुक्रिया। थैंक यू रिका। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। हेलो, बोलिए। हाय मैम। मेरा नाम आरती सक्सेना है और मुझे ये पूछना था कि वेब सीरीज़ वाले मतलब गांव की तरफ ले जा रहे हैं हम लोगों को। लाइक जो पहले अभी पिक्चरों में जैसे शहर का दिखाते हैं, लाइक यहाँ पे वेब सीरीज़ में गांव दिखाते हैं, तो आप लोग क्या लोगों के दिल से जुड़ना चाहते हैं इसीलिए गांव की तरफ? क्योंकि लोग पाइल्स बोलते हैं, आप लोग बवासीर बोलते हैं। सवाल किसके लिए है जरा बताएंगे आप मैम? मैं तो डायरेक्टर से पूछना चाहूँगी। जी बताइए। तो मतलब क्या वजह है कि ज़्यादातर सीरियल और ख़ासतौर पे पंचायत गांव की तरफ जा रहे हैं? मतलब कोई खास मकसद से, और ये सीरियल का नाम पंचायत ही क्यों रखा? तो देखिए, ज़्यादातर सीरियल कहाँ जा रहा है उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। मैंने ये क्यों किया या चंदन ने क्यों किया, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग उस एरिया में रहे हैं। हमारी 12वीं तक पढ़ाई लिखाई वहीं हुई है। हम बड़े हुए हैं मालगुडी डेज देखकर, पोटली वाले बाबा देखकर। और जब हम आए यहाँ बॉम्बे में और ये सब शुरू हुआ हमारे साथ, पहले थिएटर और फिर फिल्म मेकिंग, तो हमेशा से एक इच्छा थी कि वो जो पुराना स्वाद था मालगुडी डेज का या पोटली वाले बाबा का या ब्योमकेश बख्शी का, उसे किसी तरह से वापस ले आएं। आज के जनरेशन को वो चीज़ दिखाएं जो हम देखकर आगे बढ़े हैं, बड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये थॉट कि हम कुछ गांव से रिलेटेड बनाएंगे, कहीं ना कहीं वो उस इच्छा से ही आया था। और मुझे खुशी है कि लोगों को पसंद आ रहा है, आज के बच्चों को भी पसंद आ रहा है, युवाओं को भी पसंद आ रहा है और वृद्धों को भी पसंद आ रहा है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Hi, Akriti here from Absolute India News. My question is to Faisal sir. Hi sir. Sir, I want to know like how has your life changed after Panchayat, and did you get more opportunities owing to the success of the show, like after season 1? या सक्सेस के बाद तो है ही है, वो तो अब 2 काम करना पड़ता है, ऑफिस भी जाके काम करना पड़ता है, एक्टिंग भी करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ट्राई भी करता हूँ कि क्यों ऐसा हो, कभी कभी सोचता हूँ नहीं होना चाहिए था, सोचता हूँ अच्छा हो गया है तो अच्छा होना भी चाहिए था। तो कई साल बाद जो है मतलब वर्क का प्रेशर ज़्यादा हो गया है। अब कोई कहता है अच्छा एक्टर, तो मैं कहता अच्छा सही है भाई, फिर बताओ क्या करना है। तो कर रहा हूँ अभी, मतलब अभी देखिए आगे जाके नहीं अच्छा लगेगा एक्टिंग तो नहीं करूँगा, मतलब किसी को नहीं अच्छा लगेगा तो, पर अभी तो अच्छा है, लाइफ इज़ चेंज, मज़ा आ रहा है और कहानी मिल रही है और कुछ चीज़ें और कर रहा हूँ। पर पंचायत की वजह से है सब, ये दोनों जो है इनकी वजह से, तो ऐसा है। थैंक यू। आज छुट्टी मारी है ऑफिस में? नहीं जाना है। हेलो, जाना है, क्या बात है, हमारी तरह नौकरी पेशा इंसान है अभी, बहुत बढ़िया। नहीं हाय, मैं अनुप्रिया हूँ मिस मालिनी से। मेरा सवाल सुनीता मैम के लिए है। सबसे पहले तो आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि गुल्लक के छोटे से किरदार में भी आप जब आती हैं तो आपने दबदबा छोड़ा है वो एकदम जहन में होता है, और यहाँ तो आप दिख ही रही हैं, पूरी छाई हुई हैं। आपको लगता है मैम एक तरह से अब ड्यू जो है आपको अब मिलना शुरू हुआ है? हाँ बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे ड्यू बहुत देर में मिल रहा है और TVF की तरफ से ही शुरू हुआ है ड्यू मिलना। बिकॉज गुल्लक भी TVF का था और पंचायत भी TVF का है, तो यस, बट यू आर वेरी राइट कि मुझे 22 साल हो गए बॉम्बे में, एंड यस पास्ट फ्यू इयर्स आई एम गेटिंग माय ड्यूज। मैम अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको ड्यू मिलता ही है कभी ना कभी, आज नहीं तो कल मिलता ही। दीपक जी, थैंक यू। दीपक, आपसे मेरा सवाल है कि पंचायत जब फर्स्ट आया था सीजन, तो वो लॉकडाउन के वक्त आया था, सब लोग घर पे बैठे हुए थे
और कहेंगे कि जितेंद्र उस टाइम के पहले लॉकडाउन सुपरस्टार बने, अचानक से लोगों ने देखना शुरू किया और काफ़ी वर्ड ऑफ माउथ से फिर लोकप्रिय हो गए। उसके बाद लेकिन अभी जो दौर है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोग बहुत सारी आप पंचायत ने ट्रेंड भी सेट किया, कई लोगों ने इसको देख के भी शोज़ बनाए। तो ऐसे में चैलेंज कितना रहा। और सेकेंड सीज़न में कई बार बहुत ही कम ऐसे शोज़ होते हैं गुल्लक वगैरह को छोड़ के जो कि नहीं दे पाते हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोग कई बार चर्चा करते हैं कि सीज़न फर्स्ट अच्छा था, तो ये जानना चाहेंगे आप। तो दूसरा सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल है कि जो मतलब सीज़न 2 जब आते हैं ना किसी शोज़ के, तो वो जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं वो मुश्किल होता है। जैसे गुल्लक जैसे शोज़ हमें विश्वास देते हैं, तो ये चैलेंज कितना रहा है सीज़न 2 के साथ आपके लिए? और जो भीड़ आई है अभी एक तरह से स्टॉर्म है, उस बीच में आप कैसे अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं? जी, तो देखिए, भीड़ तो रहेगी। हम 133 करोड़ की आबादी के देश में रहते हैं, भीड़ से बचा नहीं जा सकता है। भीड़ से बचने का एक ही तरीका है कि आपका काम बोले आपके लिए। और सीज़न 1 में भी वही बोला, वो कंटेंट बोला, वो सहजता बोली, वो सिंप्लिसिटी बोली, वो नेचुरल परफॉर्मेंसेस बोली, वो स्टोरी टेलिंग बोली। तो मुझे लगता है कि सीज़न 2 में हाँ प्रेशर है, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रेशर तो होता ही है, लेकिन प्रेशर में क्रम्बल कर जाने से या सोचते रह जाने से कुछ बात नहीं बनेगी। तो हमने वही किया जो हम सबसे अच्छा करते हैं, वो है मेहनत। और सीज़न 2 में भी हमने बहुत मेहनत की है कहानी को लेके। ये कहानी जैसी सीज़न 1 में थी उससे 2 नॉच ऊपर ही जाएगी सीज़न 2 में। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीज़न 2 भी वैसा ही रिस्पॉन्स हमारी ऑडियंस हमें देगी जैसा सीज़न 1 का मिला था हमें। हेलो सर, वेनम्रू फ्रॉम मिड डे। यस, या मेरा सवाल चंदन सर से है। हाँ जी। या मुझे आपसे ये पूछना है कि पंचायत का प्लॉट का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? Urban boy in a rural setup was the thing. Yeah, I always wanted to do that and एक कहानी शुरू की कि हाँ एक बंदा एक जाता है गांव में और वहाँ किस टाइप के प्रॉब्लम्स फेस करता है, चैलेंजेस फेस करता है। और ये किया था कि हाँ जो भी बंदा जा रहा है उसे हीरो नहीं बनाना है, ठीक है। सो ये बेसिक इंस्पिरेशन था। और उसके बाद फिर कुछ थोड़ा रिसर्च वगैरह चालू हुआ, शुरू किया। अब उसमें रूरल सेटअप्स में भी बहुत तरह के सेटअप होते हैं। आपका एक पंचायत लेवल पे ऑफिस होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है, तहसील में है, अलग अलग जगहों पे होती है। अब उसमें आपको कौन सा ऑफिस चुनना है, कहाँ पे सेटअप करना है। सो उसमें फिर हमें आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस पंचायत काफ़ी अच्छा लगा कि एक गांव की कहानी भी हो जाएगी और उसमें एक ऑफिस का सेटअप है एंड इट एक्साइटेड अस वेरी लाइक। फिर मिश्रा, मैं, बाकी लोग फिर धीरे धीरे जुड़ते गए और कहानी हम बनाते गए एंड फाइनली या वी शॉट इट एंड रिलीज्ड। सो यही था, इतना बेसिक ही है, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ सोचा हुआ नहीं है। स्टार्ट वहीं से हुआ था कि एक अर्बन लड़का रूरल सेटअप में जाता है एंड दैट्स इट। थैंक यू। दीपक सर, मेरा सवाल आपसे है। जनरली पंचायत होती है वो 5 पंचों की पंचायत मानी जाती है, कही जाती है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो उठाए गए हैं, उनके बारे में दिखाया गया है कि कैसे वो सॉल्व करते। तो इसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ दिखाया गया है क्या? सीज़न 2 की बात कर रही हैं? जी सर। जी, तो पहले मैं बताता हूँ, ये पंचायत में 5 लोग होते हैं, ये 1980 की बात है। सो आज के डेट में पंचायत में कितने लोग होते हैं वो डिपेंड करता है उस गांव की आबादी कितनी है, उसके हिसाब से ब्लॉक मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं, उसके हिसाब से उप प्रधान होता है, प्रधान होता है। तो 5 की पंचायत थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है, वो अब सब कुछ लॉ बदल चुका है वो। तो हमने कोशिश की कि जो रियलिटी है वही दिखाते रहें। सॉरी, आपका दूसरा सवाल क्या था? मेरा सवाल था कि काफ़ी सारे पॉलिटिकल इश्यूज दिखाए गए हैं कि ये सॉल्व नहीं हुआ है, इसकी प्रोमिसेस किए गए हैं, तो इसको जिस हिसाब से सॉल्व किया गया है वो कितना रियलिटी कैच कर रहा है? देखिए, पंचायत में कुछ भी अनरियल नहीं होता है, सब कुछ रियलिटी के करीब ही होता है और सब कुछ उसी सहजता से दिखाया जाता है। हाँ, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स एक हिस्सा है इस शो का, सीज़न 2 का भी है, लेकिन ये गांव की पॉलिटिक्स है, ये डेमोक्रेसी के ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिक्स कैसे बिहेव करती है वो पॉलिटिक्स है। और वो पॉलिटिक्स बहुत सहज है, वो पॉलिटिक्स आपसी प्यार और एक दूसरे के सपोर्ट पर आधारित है, और वही हमने दिखाने की कोशिश की है।
Well, thank you so much. Any हेलो more questions? हाय जीतू नेहा दिस साइड फ्रॉम आज तक हाय नेहा हाय हाय सोशल मीडिया के आप सच में सुपरस्टार कहे जाते हैं बच्चे ना केवल सब हर मतलब जो दर्शक वर्ग है बुजुर्ग की बात कर ले सबके फेवरेट है तो जीतू आपकी लाइफ कितनी बदली है मतलब आप कैसे एंजॉय करते हैं मतलब इस सक्सेस को मतलब मैं तो यार वर्क अपॉर्चुनिटीज़ वाइज सोचता हूँ कि हाँ मतलब अगर तुम्हारा कोई काम को सक्सेस मिलता है यानी कि लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और तो उससे कॉन्फिडेंस आता है एंड आई थिंक वो कॉन्फिडेंस तुम जब अपना अगला काम करोगे तो वहाँ पे लेके जा सकते हो कि हाँ मतलब तुमने पिछला कुछ एक्सपीरियंस है कुछ तुमने सीखा है वहाँ के लोगों से एंड वो तुम आगे के प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हो तो वही है मेरे लिए तो सक्सेस की और मैं काम करूं और अच्छी कहानियां आप लोगों के लिए लेके आऊं एंड वो हो भी रहा है मतलब बहुत सारी कहानियां हैं अभी जो आगे मैं बताने वाला हूं अपने एक्टिंग के ज़रिए तो या मतलब यही करने आया था और फिलहाल मज़ा आ रहा है बिल्कुल ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू Thank you. If there are no more questions, we'll have to actually say bye-bye. क्योंकि वक्त जो है आपको माइक मिला है? Oh no, because they've run out of time. Can we take one last question if you don't mind? Yeah, come. हाय दिस इज़ तमन्ना सिंह फ्रॉम प्राइम टाइम नेटवर्क जीतू जी मेरा सवाल आपसे है तो इसके पहले जो आपने रोल किया है कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया का और पंचायत में अभिषेक का तो पर्सनली आपका फेवरेट रोल कौन सा है पंचायत 20 को आ रहा है अभिषेक जी को देखने के लिए 20 तारीख को भूलिएगा मत प्राइम वीडियो पर पंचायत सीजन 2 अभिषेक आपका भी नाम है अरे क्या बात है आपकी मम्मी ने पंचायत सीजन 1 देखकर आपका नाम रखा है ऐसे लगता है हमें ऑलराइट थैंक यू सो मच गाइस फुलेरा से आए जामी क्या हो गया अब तुझे सवाल याद आया नहीं मिला था अच्छा माइक नहीं अब मिलना भी नहीं चाहिए क्योंकि भी खत्म हो गया टाइम अच्छा चलो जामी पूछ लो अच्छा सर जामी को पूछ अच्छा आप बैठिए ना सर आप बैठिए हैव अ सीट Okay. अब आप पूछिए Hi, my question is to Jitu sir. Sir, you know, what were the challenges that you faced to play a Sachiv's role? Because, you know, usually for character like mafia character or any other glamorous character, you have many references out there. So, how did you manage to play a Sachiv's role, which is very unique, so very perfectly? जनरली मतलब जो वन लाइनर था इसका जो पहली बार सुना था कि एक अर्बन लड़का जो जिसने इंजीनियरिंग की हुई है जनरल और वो जाता है गांव में सचिव तो इंजीनियर टू सचिव थोड़ा सा ना वो मतलब उसका डिमोशन है मतलब जिस हिसाब का वो काम कर सकता है एक इंजीनियर और उसका गांव में जाना थोड़ा सा तो ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं अपने जहाँ से मैं हूँ कि क्योंकि रोजगार बहुत कम है और किसी भी सीट के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं तो उस सिचुएशन वाले लोग मैंने देखे हुए थे कि हाँ मतलब इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं बट कर रहे गांव में जाके ऐसी चीज़ करनी पड़ रही है तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ था लोगों को देखा हुआ था मैंने खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ था तो ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे कैरेक्टर वाइज मेनली आई थिंक शूटिंग वाइज ये एक टास्क है पंचायत को जब हम शूट करते हैं तो एक काफ़ी बड़ा टास्क है लाइक मतलब वहाँ पे मतलब हम लोगों ने ऐसा इमेजिन नहीं किया था हम लोगों ने गांव को बहुत सुहावना और बहुत उस तरीके से इमेजिन किया हुआ था वहाँ पे बहुत गर्मी होती है जब बारिश होती है तो वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होती है जहाँ पे ठंड होती है तो अलग लेवल ठंड होती है तो वो सारी चीज़ों पे शूट करना हमारे लिए एक टास्क हो जाता है तो वो सिचुएशंस हमारे लिए उनसे डील करना काफ़ी हिम्मत वाला रहा क्योंकि 47 का जो सीजन 1 हम शूट कर रहे थे वो मई में शूट कर रहे थे 47 में और उसमें हम 26 जनवरी दिखा रहे थे विच वॉज ठंड तो हम लोगों ने स्वेटर्स पहनी हुई थी शॉल ओढ़े हुए थे और 47 डिग्रीज बाहर था तो वो सारे चैलेंजेस बहुत आए अदरवाइज फॉर मी सचिव के कैरेक्टर के लिए वो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हुई थी तो वहीं से कुछ नुआंसेस मैंने उठा लिए थे एंड इंजीनियर तो मैं हुई तो इजी रहा थैंक यू ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन अब कोई आफ्टर थॉट वाले सवाल ना हो फिलहाल के लिए आई एम गोना से थैंक यू सो मच 20 तारीख को Amazon प्राइम वीडियो पर पंचायत सीजन 2 अब आपके इन चहीते किरदारों को मैं बुलाऊंगी स्टेज पर एक के बाद एक आप बोलिए पहले कौन आने चाहिए रघुबीर सर लेकिन एक काम करते हैं चेयर हटाते हैं हाँ जी सर अब तो फोटो अपॉर्चुनिटी लाइक टू रिक्वेस्ट आवर फ्रेंड्स टू काइंडली क्लियर द चेयर्स और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी जुत्तू भैया आप यहाँ पर आइए और एक एक करके हम फोटोज जो हैं लेंगे सर आपके राइट में
सर यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे देखिए सर, सर राइट साइड सर, राइट में सर, यहाँ पे सर, सर यहाँ पे सर, रघुवीर सर यहाँ पे सर, राइट साइड एक बार सर, राइट में सर, राइट में यहाँ पे अभिषेक यहाँ पे राइट में अभिषेक सर, यहाँ पे सर, अभिषेक यहाँ पे लुक यहाँ अभिषेक लुक यहाँ अभिषेक राइट साइड राइट अभिषेक राइट साइड यहाँ पे उसको फोटो लिया आपके मैम राइट में मैम राइट में मैम राइट में मैम राइट साइड मैम हियर राइट साइड थैंक यू मैम राइट साइड मैम राइट साइड अभी आज मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे थैंक यू सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब आए, आपसे मिलेंगे